جو تھوڑا سا میں نے سنا ہے اس پہ میں نے رسپانس کر دیا. تو اگر تو کوئی سوال کسی نے پوچھنا ہے تو پوچھ سکتا ہے, کوئی جی اسپیسیفک سوال ہو کسی موضوع جی کے جی بارے میں یا کسی جماعت کے بارے میں. مجھے بہرحال ان کی باتوں میں کوئی سوال نظر نہیں آیا میں جو کر ہم دیتا پہ ہوں لاگو ہوتا ہو. میں کوئی کر ایسا دیتا مجھے سوال سوال کر بہرحال لیں نظر نہیں آیا. سب جو کنسائز کر کے ذرا ہوں شارٹ جی جی بریفلی. جی جی بالکل 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 بالکل. میں سوال کر دیتا ہوں اوپن آئز بھائی. ویسے یہ انہوں نے جب گفتگو شروع کی تھی کہتے میں ڈرامہ نہیں تو ساتھ وہ گھوڑے لکڑی کی کاٹھی پہ گھوڑا وہ سارا انہوں نے شروع کر دیا. چلے ہاں خیر کو جی اس کو چھوڑتے ہیں ریلیونٹ کو, ڈرامے ان کو تو نہیں آتے. سوال یہ ہے احمد اپل صاحب, اسٹریٹ فارورڈ سوال یہ ہے, کیا جماعت احمدیہ جو نام ہے یہ رکھنا بدعت ہے یا نہیں؟ اچھا, کسی دوست نے آپ کو یہ بتایا ہی نہیں کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر پا کر بتایا ہے خدا سے صفاتی نام کے طور پر رکھا گیا؟ میں نے سوال کیا پوچھا ہے؟ جواب ہے اس میں مکمل جواب ہے. کیا جواب ہے؟ جواب دے دینا, پہلیاں نہ بجھائیں, جواب دیں. صفاتی نام خدا سے خبر پا کے جماعت احمدی کا نام جماعت احمدیہ رکھا ہے. یعنی بدعت نہیں ہے؟ بالکل بدعت نہیں ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت ہوگی, قرآن فرما رہا ہے کہ جماعت ہوگی, آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بدعت ہوگی. زبردست. اچھا, اور حنبلی شافعی مالکی یہ نام رکھنا یہ بدعت ہے یا نہیں؟ کوئی تعلق نہیں, ان چیزوں کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. بدعت دور ہے دور یا تک نہیں؟ کوئی تعلق نہیں جواب, ہمارا ان سے. بدعت ہے یا نہیں یہ نام؟ میں دیکھیں, میرے پاس کوئی فتوے کا ریسرچ تو ہے نہیں کہ میں نام لکھ رہا ہوں میں اس پہ فتویٰ لگا دوں. میں صرف سمپل بات کر رہا ہوں اپنی جماعت اور صحیح اسلام کی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا تعلیم ہے اسلام کی. اللہ سے ملفوظات خبر 2, پائی ہے, سن لیں آپ کی, میں سن رہا ملفوظات ہوں. نمبر اگر 2 اللہ سے خبر پائی ہے پیج نمبر تو یہ 208. جی میرے بھائی سن لیں, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جماعت ہوگی, مرزا صاحب نے اللہ سے خبر پا کے بتایا کہ جماعت احمدیہ نام رکھا, تو یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں یا اللہ سے کریں. ٹھیک احمد ہو اوپر کون ہوتا ہے؟ خاکسار ایک عاجز سا انسان ہے, میں کیسے جواب دے سکتا ہوں؟ ہاں تو اللہ جی. اوپن ایز بھائی انہوں نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں, وہ پہلے کہتے ہیں سوال نظر نہیں آ رہا, اب کہتے ہیں جواب بھی نہیں نظر آ رہا مجھے. نہیں میں نے جواب اچھا, دے دیا کہ اللہ نے بتایا, اللہ سے خبر پائی, یہ ملفوظات, ہاں جواب تھا میرا. اب سوال سنیں نا, سوال میرا کیا تھا, کیا حنفی شافعی مالکی نام رکھنا یہ بدعت ہے یا نہیں؟ آپ مجھ سے سوال کریں یہ, یا جنہوں نے رکھا ان سے سوال کرنا آپ نے. کس نے مجھے کہا کہ سوال کر لیں؟ نہیں, مجھے جماعت کے بارے میں ذمہ دار ہوں, میں سب کے بارے میں نہیں اوپن پوچھیے ہے. ایز بھائی ان سے کنفرم کر لیں کہ یہ واقعی سوال لینا بھی چاہ رہے ہیں, یہ کوئی ارادہ نہیں ہے. چلیں اس کا اگر آپ نے جواب یا سوال اگر سمجھ نہیں آیا تو دوبارہ پوچھ لیں, یا ختم نبوت بھائی بٹ صاحب نے اگر کچھ. میں دوبارہ سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں, کیونکہ انہوں نے کہا مجھے ان کی باتوں میں 2 منٹ میں سوال نظر نہیں آیا. اب جب میں نے سوال کیا تو کہتے ہیں میں جواب کیسے دے سکتا ہوں. اچھا, پھر بعد میں کہتے ہیں کہ جی مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ان سے پوچھ رہے ہیں جنہوں نے نام رکھا ہے. بھائی جو بندہ کہے گا یہ کیا ہو گیا, میں کون ہوں, میں کہاں ہوں, میں یہاں کیسے آیا, بھئی یہ چیز تو نہیں نہ ہوگی. ہم رکھ صاحب, میں نے نا اسی بات کا ایک ہی لفظ میں جواب دے دیا, میں نے زیادہ باتیں کرنی آتی. میں نے کہا کہ اللہ سے خبر پائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت فرمایا, یہ مکمل جواب تھا. اب میں نے آپ سے سوال کچھ اور پوچھا ہے, ادھر ادھر کی باتیں کرنی ہیں تو یہ پھر قرآن پہ بات نہ کریں, کیونکہ ان کا تو میں ماسٹر ہوں, تو اس لیے میں اس موضوع پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا. احمد بھائی میرا سوال ہی, آپ غور تو کریں میرا سوال کیا ہے. آپ میرے سوال کو ڈاج کر رہے ہیں. میں سوال پوچھ رہا ہوں حنفی شافعی مالکی یہ نام رکھنا بدعت ہے یا نہیں؟ آپ سوال غلط بندے سے کر رہے ہیں یار. اوپن ایز بھائی یہ کہتے ہیں سوال کر لیں, آپ کا سوال کدھر ہے؟ اس میں سے جماعت احمدیہ کنسائز کا کیا تعلق ہے؟ ہمارے جو جماعت ہے بتاتا اس ہوں کا کیا تعلق ہے؟ بتاتا ہوں, مرزا صاحب نے تعلق قائم کیا, بتاؤں؟ ہاں تو پھر حوالہ پیش کریں نا, پھر وہیں جی جواب لکھا ہوگا. جی آپ کا جو موضوع تھا وہ فرقوں پہ ہے, تفرق وتعصب والی جو آیت ہے, میں حوالہ تفرق کوٹ والی کر جو دیتا ہوں. آیت ہے, پھر میں نے اس کی آیت کے بدلے آیت سے جواب دیا. قرآن سے بڑھ کر ثبوت کہاں سے میں لاؤں؟ بھائی دیکھیں میری بات سنیں. عمر بھائی یہ جو قرآن کریم کی آپ لقمان بھائی, سوری لقمان بھائی عمر بھائی لقمان بھائی اصل میں میرا سوال رہ جائے گا. لقمان بھائی میں چاہتا ہوں آپ کریے گا بات. سوری لقمان بھائی, اصل میں احمد بھائی سے ایک بات کنٹینیو ہوئی ہے, آپ مجھے پلیز کریے. موقع دیں, جواب آ جائے گا آپ کا. عظیم بٹ بھائی ایک منٹ ذرا پلیز. احمد اوپل بھائی نے چونکہ خود کہا کہ سوال کر سکتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ تعلق کیسے جڑا اس کا. دیکھیں جب ہم فرقہ واریت کو ڈسکس کریں گے نا پیارے دوستو, احمد بھائی پیارے بھائی, جب ہم فرقہ واریت کو ڈسکس کریں گے اس میں جماعت احمدیہ ایک فرقہ کے طور پر ڈسکس جب ہوگی, ٹھیک ہے نا, بین جو ہمارا سوسائٹی ہے اس میں پھر جماعت احمدیہ کا سٹانڈ ڈسکس ہوگا. اب مثال کے طور پر مسلمانوں کے اندر کئی لوگ ہیں وہ خود کو حنفی شافعی مالکی حنبلی جعفری یا دیوبند یا بریلوی یا اہل الحدیث یا وہابی, ان ناموں سے اگر کوئی کسی کو یاد کرتا ہے, پہچان بناتا ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں یہ سب بدعت ہے, لہذا یہ فرقے غلط ہیں. لہذا ظاہری بات ہے یہ فرقے بنانا غلط ہو گیا, یہ بدعت ہے. آپ یہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. یہ اگر مرزا صاحب نے یہ بات فرمائی ہے
तो ये दिल भी मानता है जो नेक अहमद फितर भाई इंसान होता है ना, वो उसका दिल इन चीजों पे खुद ब खुद ही मान जाता है कि ये चीजें फजूल हैं, इनको तो छोड़ जबरदस्त के माँ ये शिरक वगैरह को, सारी चीजों को छोड़ा है। जबरदस्त ठीक जबरदस्त। है, यानी हम जो हनफी, अहमदी हैं, अभी हम शिरक डिस्कस नहीं कर रहे अहमद भाई, अभी हम ये अब डिस्कस भाई कर रहे हैं साहब कि मैं कुछ हनफी भी बात करूं तो माल वो डिस्कस नहीं है, तो वो नहीं नाम ड्रामा है। ओहो। देखें मेरा सवाल देखें अहमद भाई, ये ज्यादती हो जाती है कि अभी हम सरफेस पर बैठकर बात कर रहे हैं, अभी हम डीप डाइव नहीं कर रहे। उसके पीछे रीजन ये है कि मिर्जा साहब ने सिर्फ और सिर्फ फकत नाम रखने को या अपनी निस्बत देने को हम्बली शाफी वगैरह ये कहा है कि वो बिदत है। आपने कहा बिल्कुल मिर्जा साहब ने ये ठीक बात की है, बिदत है, ऐसे ही है ना जी? इससे बेहतर मैं अगर ये कहता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो ज्यादा बेहतर है, तो फिर उसी की वजह से मिर्जा साहब ने फरमाया, तो ये मेरे ख्याल अच्छा ज्यादा अहमद भाई ठीक है एक सेकंड, एक आमिर मिनट भाई भाई, आप नहीं लुकमान भाई, नहीं लुकमान भाई, नहीं नहीं आप- नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं लुकमान भाई, ऐसे नहीं, ये वन ऑन वन बात होगी, ऐसे नहीं। अहमद भाई अब किसी किनारे पर लग रहे हैं तो प्लीज उनको लगने दें। अहमद भाई आपने ये बात कही कि बिल्कुल ठीक कहा मिर्जा साहब ने कि हम्बली शाफी मालकी खुद को कहना बिदत है, ये आपने कहा, ठीक है ना? हाँ, अमर अकबर भाई आपके पास ना एक कोने में जो रॉकेट लॉन्चर पड़ा है ना, इस 3-4 जो लफाजों पे, वो चला दें जो चलाना है, तो मैं देख लूं नहीं कि आप उसमें क्या निकालना चाहते हैं। नहीं नहीं, वो तो मैंने पहले भी बोला था, आपने उसकी तरफ तवज्जो नहीं की, मैंने कोई नई चीज नहीं लुकमान भाई के जरूरी सामने नहीं भी था, रख मेरा दिया। काम सिर्फ जमात से तल्लक है, मैंने जवाब दे दिया नबी ठीक की है वसल्लम की जुबान मुबारक से। अब उससे ठीक है, बेहतर ये जबरदस्त। कज बैसी हो जाती है ना कि मैं सबकी जिम्मेदारी उठा लूं, वो हनफी हैं, वो शिया हैं, वो सफूकी हैं, वो सदूकी हैं, ठीक है, वो ऐसे करते यहूदी हैं हैं, वो नसारा हैं, मैं लॉजिकली, सबकी जिम्मेदारी मैं क्यों लूं? लॉजिकली ठीक है, लॉजिकली चीज़ों को परखते हैं, उनको उनका कंपैरिजन करते हैं। हम्बली शाफी मालकी नाम रखना ये बिदत है, ये तो क्लियर हो गया, मिर्जा साहब ने बोला, मलफूजात 2 में साफ तौर पर उन्होंने बोल दिया, आपने मान भी लिया। अब A इज इक्वल टू बी है और B है इज इक्वल टू सी, तो फिर A इज इक्वल टू सी ये लॉजिकल कंक्लूजन निकलता है, इसके अलावा कोई कंक्लूजन निकलता। अब मैंने जो मेरा जो सवाल, ये जो मैं बुनियाद रख रहा था उसके पीछे ये थी कि मिर्ज़ा साहब ने जो तफसीर लिखी है ना, जिसको तफसीर हज़रत मसीह मऊद के हवाले से पब्लिश या कंपाइल किया गया alislam.org पर, उसमें जो 5th वॉल्यूम है ना मिर्ज़ा साहब की तफसीर का, 5th वॉल्यूम 5वीं जिल्द, सफ़ा 415, सूरह हज की तफसीर करते हुए मिर्ज़ा साहब लिखते हैं, जो लोग इस्लाम के नाम से इनकार करें या इस नाम को आर समझें उनको तो मैं लानती कहता हूँ। मैं कोई बिदत नहीं लाया, जैसा कि हम्बली शाफी वगैरह नाम थे ऐसे ही अहमदी भी नाम है। अब आपको समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर एक जगह पर मिर्जा साहब हम्बली शाफी मालकी नाम को बिदत कह रहे हैं और दूसरी जगह पर कह रहे हैं कि अहमदी नाम भी बिल्कुल ऐसे ही हमने रखा है जैसे लोगों ने हम्बली शाफी मालकी रखे हुए हैं। ठीक है, आपको मैं समझ आ गई ये बात ना, हमने बड़ा अच्छा क्लियर किया। अब 2 चीज़ें इसमें ना, एक तो अगर आप आपके तरीके से समझा देता हूँ, अगर आप फल लेने जाते हैं किसी ठेले पे, वहाँ अगर 10 आम पड़े हैं, 9 आम जो ख़राब हैं, एक आम बहुत अच्छा है, आपको पसंद आ गया, आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि जो ख़राब आम है उनके बारे में जान पड़ताल करें, मोटा शीशा लेके चेक करें कि वो उनमें कीड़े हैं कि नहीं। आपको सही साफ आम मिल गया, आप फल लेने गए थे, आपकी बात ख़त्म होगी। ठीक है, दूसरी बात, जहाँ आपने फ़िरकों की बात की है, जो हनफी शाफी वगैरह की बात की है, तो मैंने पहले ही उसका जवाब दे दिया है कि दुनिया में लाखों मज़हब हैं, हिंदू हैं, शिरक करने वाले मज़हब, बुत परस्त वगैरह कितने सारे हैं, तो उनका नाम भी तो मज़हब ही है ना। ठीक है, हम सारे मज़हबों को फॉलो करें, सही मज़हब तो इस्लाम है, तो बात ख़त्म होगी। आपको फल भी मिल गया, सही मज़हब भी मिल गया, बाकी चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना मिर्ज़ा साहब को, ना मुझे, ना आपको। सिंपल सा बात है, इसमें भी और क्या मैं तबसरा, जी जी मैं तबसरा कर लेता हूँ। अच्छा अहमद भाई, क्योंकि आपने मिसाल दी मैं भी मिसाल देता हूँ। अहमद भाई आप एक रेडी पे गए मैंगो लेने के लिए, अहमद भाई ठीक है, आप एक रेडी पे मैंने आम कहा था, मैंगो कह रहे हैं, आम ही कर ले बेहतर। नहीं मैंगो आम कह लूँ, वो असल में जब मैं आम कहता हूँ तो मुझे वाला रेफरेंस याद आता है, इसलिए मैंने मैंगो कह दिया। ठीक हो गया, चले खैर कोई बात नहीं, मैंगो और आम एक ही चीज़ होती है। क्योंकि वो जहाँ पढ़े हैं ना, मैं टीचर था वहाँ, जी जी तो जी इसलिए हाँ, वो आजकल वहाँ का प्रिंसिपल मैं हूँ। मैंने यही कहना था कि मैं आपका एडमिशन दोबारा वहाँ पर मैंने करवा दिया। सुन ले मैंने कहना अहमद था कि मैं अहमद भाई छोड़ें, अहमद भाई छोड़ें, आप तो फंस गए हैं। नहीं, मैंने नहीं, कहना था कि मैं वहाँ का आजकल प्रिंसिपल हूँ, लेकिन वो प्रिंसिपल वो था, मैंने नहीं कहा। हाँ चले ठीक है, कोई बात, ठीक है कोई बात वो था, इसलिए मैंने नहीं 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 चले कोई, आप कहकर शौक पूरा कर लें, वो तो फिर यहाँ तो आप देखें अजब पर्दा है कि सुन अजब पर्दा है कि चिल्मन से सीधी बात करें। अमर भाई मैं बहुत सीधी बात करता हूँ, सबको पता नहीं, है, आप बदतमीजी गाली वगैरह मेरे अंदर नहीं है, भाई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी नहीं कर रहा, सीधी बात मैंने किया कब कहा है, मुझे सुने तो सही, बिल्कुल कोई ऐसा मसला। मैं तो बल्कि ये कहने लगा था कि अजब पर्दा है, चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं।
आपने आते कहा मैं ड्रामे नहीं करता, और आपने यहाँ थिएटर नहीं शुरू करना अब ना, हम सीधी बात करेंगे। अच्छा, तो अहमद भाई देखें, स्कूल क्या, ट्यूशन, कॉलेज, पता नहीं क्या कुछ, ये सारी चीज़ें छोड़ते हैं, सीरियस बात करते हैं। आप एक रेडी पे गए मैंगो लेने के लिए, ठीक है, अब आपने मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वहाँ पर रखा, ये मिसाल आपने दी इसलिए मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो बुरा मत मानने, अगली बार एहतियात कीजिएगा मिसाल में, मैंगो की जगह कुछ और रख लीजिएगा। अच्छा, आप गए वहाँ मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ चेक कर रहे हैं, तो वो मैंगो की जगह केला निकल आया, ठीक है, तो आप वो केला लेंगे या आप मैंगो वाली रेडी तलाश करेंगे? ऑब्वियसली आप मैंगो लेने आए तो मैंगो ही लेने जाएंगे, केला तो नहीं लेंगे। इसी तरह इस मिसाल के सामने जो मैंने सवाल रखा वो क्या था? वो सवाल ये था कि जब मिर्ज़ा साहब हम्बली, शाफी वगैरह नामों को बिदत कह चुके हैं, तो उन्हीं बिदती नामों से खुद को तशबीह देने की क्या ज़रूरत थी? ये है वो सवाल, इसका जवाब चाहिए। अब मैंगो केले को छोड़ के जवाब दीजिएगा। जी, मैंने इसका जवाब दिया था, आपने शायद गौर नहीं किया, क्योंकि मैंगो केला की जितने भी दोस्त हैं ना, और अगर मेरे साथ बात करें तो इस तरह ड्रामाई अंदाज से बात नहीं करती, क्योंकि आपका थोड़ा सा अंदाज मुख्तलिफ है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप उस अंदाज से दूसरों से बात करें, मुझसे ना करें, सीधी सीधी बात करें। फिर वो उस अंदाज से बात करेंगे, उसका अंजाम वही होगा जो लास्ट टाइम ओपन आइज की लाइफ पर हुआ था ना, जवाद भाई का और सीकर। मेरी तरफ से नहीं होगा, बेफिक्र हो जाए। इंशाल्लाह मेरी तरफ से भी नहीं होगा। तो जो आपने सवाल किया था, मैंने उसका जवाब फौरन दे दिया था उसी वक्त ही। क्या जवाब? क्योंकि हाँ जी, आपने जो फिरकों की बात की थी ना, तशबीह दी है, तो मैंने उसकी मिसाल मजहबों से दी थी। अब मजहब कोई बुरा है या गंदा है, हालांकि जो फंडामेंटली जो जितने भी बुनियादी तौर पे मजहब हैं वो एक खुदा की इबादत और वहदानियत पेश करते थे, बाद में ख़राब हुए। लेकिन जहाँ तक फलों की बात है या मजहब की बात है या फ़िरकों की बात है, तशबीह दी है मिर्ज़ा साहब ने। आप अगर मिसाल देंगे तो अच्छे बुरे मजहबों को सारों को मजहब ही कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि जी हाँ जी वो नसारा के अंदर वो अगर वो शिरक करते हैं, मूर्ति पूजा करने वाले हैं, अगर हिंदू हैं तो उनको मजहब नहीं कहना, उनका नाम आज से कुछ और है, ऐसा नहीं कह सकते, वो भी मजहब ही हैं। इसलिए मिर्ज़ा साहब ने इस बिना पर उनको भी यही कहा, फिरका ही कहा, ठीक है। लेकिन बेशक वो गलत ही है, फिर कह भी दिया कि वो गलत है। आपने खुद अपनी ज़बान से कहा कि वो उनको गलत कहा मिर्ज़ा साहब ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलत कह दिया, तो मिर्ज़ा साहब ने गलत कह दिया, कौन सी बड़ी बात है, मैं भी गलत कहता हूँ। तो बहरहाल वो फिरकी हैं। और इसी तरह मैंने मिसाल मजहबों की दी है, तो अगर 50 मजहब हैं तो उनमें से एक मजहब अगर सच्चा है, 49 मजहब अगर ख़राब हैं, तो उनको हम उनका मजहब का मतलब नाम नहीं चेंज कर देंगे, वो मजहब ही रहेंगे, फिरकों को फिरके ही कहेंगे। जैसे नबी की उसने अपनी ज़ुबान मुबारक से 72 कहा है, नसारा को कहा 72, फिर यूद को 72 कहा, नसारा को कहा 72, 73 कहा मुसलमानों को, तो इस तरह अपनी उम्मत में, लेकिन अपनी उम्मत कहा है, फिर भी फिरके कहा है। तो इसमें मजीद कुछ निकालने से कजब ऐसी है, कोई नई चीज़ कोई हो तो फिर उस पर बात की जा सकती है। मुकम्मल सवाल मेरे ख्याल मैंने जवाब दे दिया इसका। जी नहीं, जवाब नहीं आया, क्योंकि मिसाल ही गलत दी है आपने, जवाब नहीं आया। और ये फैसला मुझे भी एक सेकंड देंगे, मुझे आपने काफी देर से नहीं वो अहमद भाई और नहीं, मैं आपको बिल्कुल लुकमान भाई बिल्कुल आपका हक, चलें ऐसे करें। मैंने एंट्री की थी तो लुकमान भाई माजरत के साथ आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो करें, मैं इस तरह जवाब दे सकता हूं। मैंने सिर्फ एक बात कह के उसके बाद आमिर हक भाई आप करिएगा। लुकमान भाई बिल्कुल आप कर लें, मैं आपके बात कर लूंगा। हाँ जी जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। आप करिएगा बात। मैं सिर्फ एक अर्ज करना चाहता हूँ, वो ये है कि मिर्ज़ा साहब ने हनफी, शाफी, देवबंदी, बरेलवी ये नाम बताए हुए हैं कि जिस तरह इन फ़िरक़ों के ये नाम हैं, जिस तरह इन मज़ाहब के ये नाम हैं, और उनमें से इस्लाम भी एक मज़हब है, जिस तरह हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, उनके मज़हबों के ये नाम हैं, इसी तरह इस्लाम भी एक नाम है। इस तरह हम हनफी, शाफी, देवबंदी, बरेलवी, चकड़ालवी वगैरह वगैरह जितने भी फ़िरक़ों के नाम हैं, ये बहसियत एक नाम के उन्होंने बयान किया है कि जिस तरह उनके नाम हैं इसी तरह मेरे फ़िरके का नाम भी अहमदिया है। अब मज़ीद डिटेल में जब जाएंगे तो वो फिर हम साबित करेंगे कि ये जो फ़िरके हैं ये बिदात में डूबे हुए हैं। वहाँ पे बहसियत एक नाम के वो ममासला दे रहे हैं। अब कोई शख्स उठकर अपना नाम उमर रख ले तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि वो अबू जहल बन गया। सो ऐसे नहीं होता। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया हुआ है कि मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी और उनमें से एक फ़िरका जन्नती होगा और वो एक जमात होगी। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा दिया कि वो एक जमात होगी, एक फ़िरका होगा और वो एक जमात होगी, तो और वो कौन होंगे? वो अना अलैहि व अस्हाबी, वो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर चलने वाले होंगे। तो क्या ये हनफी, शाफी, देवबंदी, बरेलवी, चकड़ालवी, बुत परस्त ये सब क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नक्शे कदम पर चल रहे हैं? नहीं चल रहे। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि एक जमात होगी, तो वो जमात का कोई नाम तो रखना था ना, कि नहीं था रखना?
कैसे पहचानेंगे उस हम जमात को? जब एक थर्ड पर्सन आएगा, आप 70 फिरके एक क्लास में बैठे हों, आप 70 फिरके एक क्लास में बैठे हों, एक स्टूडेंट अंदर आए और वो कहे जी कि मैंने उस फिरके को मिलना है जिसका वो इतनी लंबी तवील दे, 1400 साल पहले फलान मिसाल दे के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तो वो उससे मुझे मिलना है, इतनी लंबी तमहीद कर बांध दे दिया। कि मुझे कोई नाम ना रखना। तो भाई नाम तो रखना था ना, जब रसूल ठीक करीम हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि फिर वो फिरका होगा और वो मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर चलना होगा, ये भी साथ फरमा दिया है, तो फिर इतराज तो बाकी बचता ही नहीं है, वो तो कजब ऐसी पीछे बचती है और इतराज कोई नहीं बचता। ठीक हो गया जी। अच्छा हाँ जी, जी। और फिर अब हम एक आखिरी अहमद बात, भाई, आखिरी लुकमान बात, भाई आखिरी जी बात, एक आखिरी बात, फिर उस फिरके के बारे में ये भी फरमाया है कि वो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर होगा। आप देख लें कि आपके जितने भी हनफी, शाफी, बरेलवी, चकड़ालवी, देवबंदी हैं, ये आप उनके नक्शे कदम पर है ही नहीं है, क्योंकि पाबंदियाँ जमात अहमदिया पर लगी हैं। जैसे सहाबा पर लगती थी, कुर्बानी हमें मना है जैसे सहाबा को मना थी, अजान हमें मना है जैसे सहाबा को मना थी, जी। आज लुकमान वाफर भाई आप हमें कहते सैर हैं करते जैसे हैं, उनको कहते थे। सैर करते हैं जी नक्शे जी। कदम तो हमारे मिलते हैं सहाबा से, हाँ आपके तो ठीक मिलते है, ही नहीं। आपके नहीं मिलते ठीक हैं है, सिर्फ अबू थैंक यू जहल अबू जहल से, फिरौन से जी और जी। ठीक मुनकरीन से, इनकार करने वालों से आपके नक्शे कदम मिलते हैं, इसलिए जी जी, आप ठीक है तो लुकमान भाई, इसलिए आपने टाइम लिया था, इसलिए कि हमें सैर करवाएं। माइक म्यूट कर लेना, ठीक है। लो जी दोस्तों, फ़लस्तीन का भी आपने राउंड, अहमद उपल भाई की बात का जवाब, क्योंकि असल मौजू वो है, ये फक्की फुक्की हम बहुत खा चुके हैं, इसका अब असर ख़त्म हो चुका हुआ है, ठीक है। ये फ़लस्तीन का चक्कर लगाओ, कश्मीर का लगाओ, इराक़ का लगाओ, अफ़गानिस्तान का लगाओ, दुनिया घूमो फ्री के अंदर असल मौजू बीच में रगड़ा जाए। और दूसरा जी, हमारी मुशाबत है सहाबा के साथ। ये कमाल बात है कि 150 साल बाद सहाबा के साथ मुशाबत याद आई है। मिर्ज़ा साहब के ज़माने में तो फुल टू जनाब नौकरियां मिल रही हैं और याशी चल रही है बरतानवी गवर्नमेंट के अंदर। हाँ, ये सही मिसाल है। मुसलमान सहाबा पर पहले वक्त के अंदर जो है सख्त टाइम आया था, ये अपनी मुशाबत करार दे रहे हैं। खैर छोड़ते हैं, असल टॉपिक है अहमद उपल साहब के साथ जो बात हुई है। दोस्तों, अहमद उपल साहब ने माना ये चीज़ कि फ़िक़ा हनफी को इन्होंने गलत इस बुनियाद के ऊपर कहा है, सॉरी हनफी नाम रखने को या इन चीज़ों को, कि जिस तरह दूसरे मज़ाहब हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, इसको आपने मिसाल से समझना है। मैं मुख्तलिफ मिसालें आपको समझाता हूँ। इन्होंने माना कि मिर्ज़ा साहब ने जो हनफी शाफी माल की बिदत कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है, जैसा कि किसी गलत मज़हब को या गलत दीन को कहा जाता है कि वो गलत है मगर है तो मज़हब ही है। दो चीज़ों में फ़र्क समझे, एक है मज़हब जो जेनरिक टर्म है, दीन जो जेनरिक टर्म है, और एक है स्पेसिफिक। हनफी, मालकी, शाफी स्पेसिफिक टर्म है, अहमदी एक स्पेसिफिक टर्म है। ये नाम रखने को मिर्ज़ा साहब ने बिदत कहा है। कोई अपने आप को कहे स्कूल ऑफ थॉट, फ़िक़ही मसलक, वो तो हर एक को कहेंगे, वो तो हिंदुओं के भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ईसाइयों के भी हैं। तो अहमद उपल साहब की मिसाल गलत थी, लिहाजा जवाब बिल्कुल भी ठीक नहीं बना। अब आ जाता है उससे आगे। अगर ये बात मानते हैं कि मिर्ज़ा साहब के नज़दीक हनफी, शाफी, मालकी ये सब बिदत हैं और मिर्ज़ा साहब ने आके ठीक चीज़ पेश किया, सबको इकट्ठा किया है, तो आए फिर सुनते हैं कि इसका असर कहाँ तक जाता है अहमद उपल साहब की बात का। सीरतुल महदी के अंदर वॉल्यूम 1 है, रिवायत है 359। वो कहते हैं कि एक दफ़ा किसी दीनी ज़रूरत के मातहत मिर्ज़ा साहब ने मौलवी नूरुद्दीन साहब को ये लिखा कि आप ये ऐलान फरमा दें कि मैं हनफीउल मज़हब हूँ। हाँ जी, बिदत। मिर्ज़ा साहब ने कहा आप फरमा दें मैं हनफीउल मज़हब हूँ, हालांकि आप जानते थे कि हज़रत मौलवी साहब अकीदतन अहले हदीस थे। तो मिर्ज़ा साहब ने कह दिया कि आप ऐलान फरमाएं कि मैं हनफीउल मज़हब हूँ। उनको कहा। ज़िक्र हबीब के अंदर सफ़ा 219 में मिर्ज़ा साहब के बारे में मुफ्ती सादिक साहब ये बयान फरमाते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने फरमाया, हमारे यहाँ जो आता है उसे पहले एक हनफियत का रंग चढ़ाना पड़ता है। बिदत, हनफियत का रंग चढ़ाना पड़ता है जमात अहमदिया के अंदर। तो अगर हनफी, शाफी, मालकी तो बिदत हैं और अहमद उपल साहब ने भी कहा वो गलत हैं, तो पर हनफियत का रंग क्यों चढ़ाना पड़ता है? मेरे ख्याल में ये चारों मज़हब अल्लाह ताला का फजल हैं। ज़िक्र हबीब, चारों मज़हब अल्लाह ताला का फजल हैं। एक तरह का बिदत, और इस्लाम के वास्ते एक चार दीवार हैं। वो कहते हैं ये एक बाउंड्री है, बॉर्डर है जो सपोर्ट कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने इस्लाम की हमायत के वास्ते ऐसे आला लोग पैदा किए जो नहायत मुत्तकी और साहिब तज़किया थे। आज कल के लोग जो बिगड़ते हैं इसकी वजह सिर्फ यही है कि इमामों की मुताबत छोड़ दी गई है। किन की? हनफी, मालकी, शाफी, हम्बली, इस हवाले के बकौल। तो ये बिदत कैसे हो गई? इसी तरीके से ज़िक्र हबीब के अंदर सफ़ा 164 पर चले जाएं, हनफी मज़हब पर अमल। मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं शरीयत के अमली हिस्से में सबसे अव्वल कुरान मजीद है, फिर अहादीस सहीहा जिनको सुन्नत की तायद करते हैं,
اگر کوئی مسئلہ ان دونوں میں نہ ملے تو پھر میرا مذہب تو یہی ہے کہ حنفی مذہب پر عمل کیا جائے۔ اب سوال یہ ہے جو ہم نے رکھا کہ احمد اپل صاحب نے یہ بات کی کہ جناب حنفی شافی مالکی بالکل بدعت ہیں، تو پھر احمدی نام رکھ کر بھی حنفیت کے پیچھے ہی چلنا ہے اور ان اماموں کو فالو کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سارا کچھ ہی بدعت ہے۔ یعنی یوں سمجھے احمد اپل صاحب کی مثال کے مطابق کہ خود کو کہنا اسلام اور چلنا ہندوؤں کے طریقے پر، خود کو کہنا جماعت احمدیہ حقیقی اسلام والے اور چلنا عیسائیوں کے طریقے پر، خود کو کہنا الہی جماعت اور چلنا سکھوں کے طریقے پر۔ یہ خود احمد اپل بھائی نے مثال دی، میں نے نہیں دی۔ بہت شکریہ جی، جواب چاہیے جی۔ جی جی، آپ نے کہا تھا کہ میری طرف سے شروعات ایسے الفاظوں کی نہیں ہوگی، تو آپ نے شروعات تو کر دی ہے۔ کیا لفظ بولا ہے؟ جو بھی آپ نے بولا میں اب دہرا نہیں سکتا۔ نہیں، آپ کیا ہر بولا؟ بار میرے کیا کندھے بولا؟ پہ بندوق نہ چلائیں۔ نہیں کیا بولا ہے؟ ابھی جو بھی آپ نے کہا ہے میں دہرانا نہیں چاہتا۔ نہیں میں نے کوئی گالی دی ہے؟ نہیں، مجھے بتا دیں، میں معذرت کر لوں گا، میں اس لیے نہیں پوچھ رہا، میں معذرت کر لوں گا اگر کوئی ایسی چیز کٹھی بتائیں۔ بعد میں کر لیں، معذرت اکٹھی ہو جائے، زیادہ باتیں ایک کو اگنور کر نہیں دیں۔ تو پھر اگر آپ نے کوئی ایسی جوابی کارروائی کی غلط فہمی کی بنیاد پر تو پھر مجھے بھی کرنی پڑے گی، مجبور ہو جاؤں گا۔ پہلے بتا دیں، میں معذرت کر لیتا ہوں۔ میں پہلے وان کرتا ہوں پھر کرتا ہوں، بہت ٹھیک ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ بار بار میرے کندھے بندوق نہ چلائیں۔ میں نے جواب بڑا واضح کلیئر دیا ہے، آپ نے اکٹھے 2 منٹ کے اندر کوئی پھر دوبارہ کوئی 7 یا 8 سوال کیے ہیں، اب میں کس کا جواب دوں؟ یہی ہمارے جو مخالفین ہیں ان کا مسئلہ ہے کہ ایک ایک کر کے آئیں تو کبھی کسی منزل پہ شاید پہنچ جائیں۔ یہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک سانس بھرتے ہیں تو پوری وہ جتنی گنتی 1 2 3 4 نہ بول دیتے ہیں۔ کوشش کیا کریں ایک سوال کریں۔ مجھے جو واضح سوال نظر آیا ہے، آپ نے جو بات کی ہے فقہ وغیرہ پہ، وہ جو حنفی مرزا صاحب نے کہا ہے ہماری جماعت احمدیہ، آپ کو بھی پتہ ہے کہ فقہ پہ عمل کرنا لازمی ہے، ٹھیک ہے؟ مرزا صاحب نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ جماعت احمدیہ فقہ حنفیہ پہ عمل کرتی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ رفع دین کرنا یا نہیں کرنا، جتنی بھی زیادہ اور سچی اور پختہ اور زیادہ حدیث جس طرف ہیں وہ فقہ حنفیہ ہے۔ مرزا صاحب نے اگر مثال دی ہے تو اس وجہ سے دی ہے کہ ہم فقہ حنفیہ پہ ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں الحمدللہ، کیونکہ فقہ کو تو کوئی نہیں چھوڑ سکتا۔ فقہ، فرقے اور مذہب میں فرق ہے۔ فقہ وہ ہے جن چیزوں سے ہم نے ایمان کو لینا ہے کہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی، جو زیادہ تر حدیث ہے وہ کون سی تھی، کیسے نماز زیادہ طریقے سے پڑھی گئی ہے، جمع کیسے کرتے تھے، قصر کیسے کرتے تھے، یہ چیزیں ہیں فقہ میں۔ طلاق وغیرہ کے موضوع ہیں جو اور مسئلے مسائل ہیں، یہ اس کا تعلق فقہ سے ہے۔ تبھی مرزا صاحب نے واضح طور پر بتا دیا کہ ہم آج بھی کہتے ہیں ہمارے جو عقائد ہیں ابھی بھی فقہ حنفیہ پہ ہی ہیں، کہ زیادہ جو حدیث ہیں قرآن اور حدیث کے مطابق فقہ حنفیہ ابھی بھی ہماری نظر میں ہے۔ تو ہماری جماعت احمدیہ زیادہ تر قریب فقہ حنفیہ پہ ہے، اس پہ عمل کرتی ہے۔ تو یہ ایک سوال مجھے سمجھ آیا جس کا میں نے واضح جواب دے دیا۔ تو باقی جو ادھر ادھر کما کے فائدہ کوئی نہیں، ایک ایک سوال کرنے، کوئی اگر اچھی ماشاء اللہ اچھی گفتگو آپ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، چلتی رہنے دیں۔ لقمان بھائی بھی ہیں، اگر آپ مجھ سے ہوگا تو میں بھی جواب دے دوں گا۔ جزاک اللہ۔ جی، میرا سوال کلیئر تھا۔ آپ نے جس چیز کی وضاحت کی ہے وہ فی نفسی ہی خود اعتراض ہے، وہی اعتراض ہے۔ مثال کے طور پر میرا سوال جو اصل تھا وہ سوال یہ تھا کہ مرزا صاحب نے حنفی، شافی، مالکی ان ناموں کو بدعت کہا، آپ نے کہا بالکل ٹھیک کہا۔ میں نے کہا دوسری جگہ پر مرزا صاحب نے کہہ دیا ہم احمدی ایسے ہی ہیں جیسے لوگ خود کو حنفی، شافی، مالکی کہتے ہیں، تو پھر احمدی کہنا بھی بدعت ہونا چاہیے اصولی طور پر۔ آپ نے کہا نہیں، اس کی وجہ آپ نے یہ دی کہ جس طرح دوسرے مذاہب چاہے غلط ہیں، کہا تو ان کو مذہب یا دھرم یا دین ہی جائے گا نا، ہوں گے تو وہ غلط ہی۔ اس اعتبار سے مرزا صاحب نے کہہ دیا کہ جیسے وہ خود کو حنفی، شافی، مالکی کہتے ہیں یہ ہمارا نام ہے۔ یہ تھی آپ کی وضاحت۔ اس وضاحت میں غلطی تھی جس کو میں نے واضح کیا، وہ غلطی یہ تھی کہ یاد رکھیں حنفی، شافی، مالکی یہ پراپر ناؤن ہے، ٹھیک ہے نا، اسپیسیفک ناؤن ہے یہ، ٹھیک ہے، کامن ناؤن نہیں ہے۔ جس طریقے سے جینرکلی جو ٹرم یوز کی جاتی ہے مذہب، دین، دھرم، یہ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس اعتبار سے یہ مثال ٹھیک نہیں بیٹھتی، کیونکہ مرزا صاحب نے اسپیسیفکلی ناموں کو جن کو بدعت کہا انہی ناموں کے اصول کی بنیاد پر خود کو کہا کہ میں پھر یہ ہوں۔ یہ ہے میرا سوال اصل۔ اچھا، اب یہاں جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ جو واقعی مرزا صاحب نے بدعت کہا، اس پر پھر میں نے جو سوال اٹھائے ہیں وہ یہ اٹھائے ہیں کہ اگر مرزا صاحب واقعی ان کو بدعت وغیرہ مانتے تھے اور کہتے تھے یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے اور اس طرح نہیں بٹنا چاہیے، تو پھر مرزا صاحب نے خود کو امام ابو حنیفہ سے تشبیہ کیوں دی؟ اپنی کتابوں کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ مجھے ایک طرح سے جو امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، یہ لکھا انہوں نے، امام اعظم لکھا، امام اعظم لکھ کے انہوں نے کہا کہ مجھے ان سے مشابہت تامہ حاصل ہے۔
जी तो मैंने एक यही तरफ अर्ज किया, बहुत लंबी बात होगी, यही तो नहीं मैंने नहीं, अर्ज और मुझे किया आगे हम भी मुझे फिक्र मुकम्मल करने दे, हनफिया पे मैंने हैं। आपकी बात खामोशी सुनी है ना अहमद भाई, आपने कुछ भी कहा, मैंने खामोशी सुनी। इस तरह वो ज्यादा ये दोहरा ज्यादा रहे हैं, होगी चले कर लें जी। बात नहीं, इसमें। दोहराना पड़ेगा ना पब्लिक को, क्योंकि वो धूल पड़ जाती है उस पर। देखें, आप अगर बात करें तो वो दोहराना नहीं है, मेरी बारी, ये तो ज्यादा वाली बात है ना, ये तो उसूल बराबरी का नहीं है। ठीक है, दोहराने के पीछे वजह ये होती है कि चीजें और निखर कर सामने आए। मैं हवालों को दोहरा रहा हूं गुफ्तगू में निखार पैदा करने के लिए। मिर्जा साहब अगर खुद को हनफीउल मजहब कहें, हकीम नूरुद्दीन साहब को कहें खुद को हनफीउल मजहब कहो, यह बिदत नहीं है। मिर्जा साहब कहें हमारे पास जो आएगा उसको सबसे पहले अपने ऊपर हनफियत का रंग ओढ़ना पड़ेगा, यह बिदत नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि वो खुद को अहमदी क्यों ना कहे, वो हनफीउल मजहब क्यों कहे, वो खुद को फिका हनफियत का रंग उस पर क्यों चढ़ाए, वो अहमदियत का रंग चढ़ाए ना। क्योंकि यानी यूं समझे, मैंने इसकी मिसाल ये भी दी सवाल है, हो यूं गया, समझे सवाल हो गया वो आपका। बंदा खुद को ये कहे कि मैं मुसलमान हूं, मैं इसकी दोबारा मिसाल रिपीट करता हूं, ये ऐसे ही है कि कोई अहमदी कहे मैं मुसलमान हूं मगर मेरे पे हिंदुइज्म का रंग चढ़ा हुआ है, मैं मुसलमान हूं मेरे ऊपर ईसाइयत का रंग चढ़ा हुआ है, मैं मुसलमान हूं मेरे ऊपर सिखियत का रंग चढ़ा हुआ है। अच्छा ये इतराज है हमारा। दोहरा दें, सिखों को ना हमल करें हिंदुओं को, वो दोहरा दें जो आपने क्या वो रंग जो चढ़ रहा है फिक्की हनफिया, क्या आप कह रहे थे? हाँ, वो मैं ये दोहरा कह रहा था कि फिका हनफियत, शाफियत, मालिकियत ये अगर बिदत हैं तो मिर्जा साहब को फिर ये नहीं कहना चाहिए था कि मेरा नाम भी इसी तरह ही है जैसे इनका है, ये बिदत है। ठीक है, ये गलत था, समझे पॉइंट मेरा? तो सवाल का जवाब फिर वही शॉर्टकट ही है कि आपने खुद बता दिया, माना भी मैंने खुद सुना आपकी ज़बान से, आपने इकरार किया। तो वो जिसकी बात हो रही है, अगर जो फ़िक्का हनफिया की बात हो रही है, वो फ़िक्का की बात है। मिर्ज़ा साहब ने जिसको एक्सेप्ट किया, अपने अपने खुद को उनके साथ मिलाया। क्यों मिलाया? कि हम खुद उसी पे अमल करते हैं, और फ़िक्का चीज़ ही कुरान और हदीस से बनती है। और उन्होंने अगर उनको पसंद था, आज भी देखिए, अगर सही आप फैसला कर लें हदीसों से, कुरान की आयतों से, कोई भी मसला उठा लें, सबसे जो बेहतर फैसला फ़िक्का हनफिया का निकलता है। तो इसलिए मिर्ज़ा साहब ने, मैंने पहले भी अर्ज कर दी थी कि हम आज भी उस पर कायम है। मिर्ज़ा साहब ने भी, आपने खुद बयान कर दिया कि उन्होंने खुद को शामिल किया। ठीक जी है, जी जी, तो इसीलिए यही ये इतराज है ना। ये बिदत मुकम्मल बात बड़ी आसानी से समझ आ जाती है। और नहीं नहीं, जहां तक जी जी देखें, एक एंगल देखें, आपने जो चीज़ क्लियर की है मैं उसका इतराफ़ कर रहा हूँ। आपने ये बताया, इकरार किया कि मिर्ज़ा साहब ने अपने हवाले से, जो हनफियत के हवाले से अपने आप को मंसूब किया, उसके पीछे हिकमत क्या थी, आपने इसको क्लियर किया, मुझे समझ आ जज़ाकल्लाह गई। शुक्र, आप समझ आ गई। नहीं नहीं, देखें अहमद भाई, लगता है आप मुझसे बदगुमान हुए हैं, शायद आपने दूर से सुना है, मुझे पास से नहीं सुना। मसला ये कहने का है, जितनी बात आपकी एतराफ़ करने के काबिल है वो कर रहा हूँ, जो मेरा असल सवाल है वो वहीं पर है। जब आप इस सारे सिस्टम को बिदत कहते हो, आप इन नामों को बिदत कहते हो, फिर कैसे मुमकिन है कि आप खुद के नाम की जस्टिफिकेशन इन्हीं के नामों से दो? आप समझ रहे देखिए, हैं, मिसाल के नाम तौर पर का फैसला मुसलमान तो कोई, खुदा ने कर दिया। उन्होंने अपना जो मुद्दा है वो खुदा पे रख दिया। अब क्या खुदा क्या जाने, रसूल जाने, हम जाने, ये मानने वाले जाने या ना मानने वाले नहीं नहीं, जाने, मुद्दा आप क्या रख दिया खुदा पे? सॉरी, मैं समझा नहीं। यानी अपनी जमात का अगर नाम उन्होंने हवाला भी दिया ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर कुरान की आयत जो मैंने पढ़ी थी, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफलिहून। हाँ, और चाहिए कि तो तुम में से फाउलाई का जमात, हुमुल, ये तो नहीं ना लिखा फाउलाई का हुमुल अहमदीयून? भाई जमात है, हमें खुदा से खबर पाई तो जमात का, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो पिछली किताबें गुजरी हैं यहूद नसारा में, उनमें भी सूरह राफ का में जिक्र मिलता है कि उनमें किताबों में जिक्र था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ऐसे ही है ना? ठीक भाई है। देखें, ये अलग चीज अब हो क्या जाएगी। मैं तफसील कह से रहा हूँ, जिक्र था? देखिए दो तफसील चीजों से में था फर्क जिक्र, अहमद हर भाई, बात का, कहाँ गुजरेंगे, कहाँ रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, देखें बाकी ये काम उन जन्नी, पे छोड़ दें ना। देखिए, अहमद भाई, बीच में अहमद इंटरप्ट भाई, ना करें। चले कर जो लें आने बात। वाला है, कुछ काम, कुछ बातें उस पर छोड़ दें। अगर एक नबी की पेशन गोई होती है आने वाले के बारे में, उसकी जिम्मेदारी ये तो नहीं है कि आने वाले के बारे की सारी जिम्मेदारी खुद निभा के जाए। पेशन की थी, बस होगी पूरी, बाकी मिर्जा साहब पे छोड़ दें। चले, मिर्जा आपकी साहब को बात फॉलो मुकम्मल करें, होगी। माने, समय ना ताना कहें और मान लें। ये गलत तरीका है, मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे बोलना पड़ रहा है, मैं माजरत चाहता हूँ, रुकिएगा। देखो, ये मैंने गलत तो तरीका आप है सबर में रखा हूँ, तो फिर आप चले, ठीक है, करें बात। अहमद भाई। देखें, नहीं वो मिलजुल के कर लेते हैं, हमको गाली गलोच या कोई तल्ख कलामी नहीं हो रही, इसलिए अच्छा है कि सलीके से बात हो जाए, फ़र्क होना चाहिए, कोई ऐसा मसला नहीं। देखें, आपने जो बात मिसाल रखी है ना, वो इसलिए ठीक नहीं बैठती है कि जो चीज़ महल्ले नज़ा होती है ना, जो डिस्प्यूटेड एरिया होता है, वो आर्ग्यूमेंट के तौर पे यूज़ नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर कश्मीर का मसला है, वो यानी मैं मिसाल दे रहा हूँ, मौजू इसको डाइवर्ट ना समझिए। कश्मीर का मसला इस वक्त इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर डिस्प्यूटेड है। कोई कश्मीर के अंदर के हालात को दलील बनाकर ये नहीं कह सकता कि चूंकि वहाँ पर ये
तमाशे चल रहे हैं लिहाजा मैं दूसरे मुल्क के एरिया में भी तमाशे करूँगा, ये नहीं कर सकता। लिहाजा मिर्ज़ा साहब के हवाले से अभी ये चीज़ क्लियर ही नहीं हुई कि मिर्ज़ा साहब अपने दावे में सच्चे हैं या नहीं, या मिर्ज़ा साहब जो दावा कर रहे हैं उसके एतबार से वो दलील दे पाए हैं, साबित कर पाए हैं या नहीं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने जो कह दिया वो ठीक है? ये आप अहमदी से बात नहीं कर रहे, उस सर्कल से निकल आए। आप एक गैर अहमदी से बात कर रहे हैं जो मिर्ज़ा साहब की सदाकत पर अभी इस मामले में कायल नहीं हुआ। हम इस वक्त बात करें एक उसूली मसले की कि क्या किसी जमात को खुद को ऐसा नाम देना चाहिए जिसको खुद वो बिदत कह चुके हों, यानी बिदत की कैटेगरी में रख चुके हों, ऐसे मिलता जुलता को नाम देना चाहिए? यकीनी तौर पर नहीं होना चाहिए। अब मैंने जो दलाइल रखे थे वो बेसिकली इस बुनियाद पर रखे थे कि जिस चीज़ को बिदत कहा गया, एक तो उससे मिलता जुलता नाम अपने आप को दे दिया, खुद कहा कि इसी तरह हमारा नाम है। दूसरा ये कि मिर्ज़ा साहब आए थे उन तमाम बिदआत और खुराफात को ख़त्म कर कर एक नाम तले इकट्ठा करने के, जो लुकमान भाई ने कहा। जैसे ही को बंदा आता है वो कहते हैं हनफीउल मजहब हूँ, हनफियत का रंग पहले चढ़ाओ। भाई उसको तो आप कह चुके हैं कि वो खिलाफ थे, बिदत थी, ये नाम नहीं लेने, इनके साथ अपने आप को मंसूब नहीं करना। ये अहमद भाई मिसाल आप वो दें जो मिसाल टिच करके बैठे। फिर दूसरा आप कह रहे हैं दूसरे धर्मों को, मुझे आपकी आवाज़ समझ आई है, मगर उसका ताल्लुक आपकी उस मिसाल के साथ नहीं, सॉरी इस मिसाल के साथ फिट नहीं। आपकी मिसाल का ताल्लुक हमारे वाले केस के साथ मैच नहीं बैठता, माजरत के साथ जी। चलें फिर मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ कि मिर्ज़ा साहब ने हनफी को अपने साथ मर्ज किया है, पसंद किया है, और हम भी उस फिरके को मानते हैं, तो बाकियों को बुरा कहे, ज़ाहिरी बात है। बाकी उनकी निस्बत जो बाकी हैं उनमें जो बुराइयां नज़र आई हैं तो कहा है ना, तो आज भी जो बाकी फ़िरके हैं उनमें शिरक की बातें भी पाई जाती हैं। तो मिर्ज़ा साहब ने शायद इसी वजह से कहा कि जो बाकी हैं उनको नापसंद किया और फ़िरका हनफिया को पसंद कर लिया, और ख़ुद अपने आप को मर्ज भी किया और उनको भी पसंद किया। तो वो जवाब पहले हो चुका है। अब आप कहते हैं कि मुझे पता है कि मिर्ज़ा साहब को नहीं मानते, आपके लिए हुज्जत नहीं है, ठीक है। जो ऐसे हम में जो हम अहमदी हुए हैं, हम भी नहीं मानते थे। इसी तरह जब अल्लाह ताला ने हिदायत दी, ये बातें समझ में आई हैं, सवाल जवाब किए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें समझ आ गई, अल्लाह को मंजूर था तो अहमदी हो गए। तो ये कोई ऐसी मुझे इल्म है क्या अहमदी नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आपके सवाल है, बहरहाल वो सवाल में आपने 3-4 दफ़ा दोहराए हैं, क्योंकि आप तो कुरान हदीस से बात कर रहे थे। मेरी अक्सर मुतअद्दिद बार ना अपना मुख्तलिफ लोगों से, तमाम लोगों से मेरी डिबेट हो चुकी है, जितने भी इस वक्त टिकटॉक पे है, मेरा ख्याल है। ख़ास करके शाह साहब और शाह साहब के जो उस्ताद हैं, जो क्या नाम है उनका, सियालवी साहब, मियाँ साहब की बड़ी लंबी हुई थी। एंड में वो खुद ही छोड़ के चले गए। वो उनका दावा था कि मैं कुरान से कभी मैंने मिर्ज़ा साहब की बात नहीं करूँगा। तो वो अक्सर एंड में अब आजकल मिर्ज़ा साहब पे शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि अगर कुरान हदीस पे सामने रखना है तो वहाँ से हम ढूंढते हैं। तो फिर मिर्ज़ा साहब की तो 85 किताबें हैं, 1000 खूबियाँ हैं, बीच में सिर्फ वो चीज़ें जो आपको नज़र आती हैं जिसमें डिफ़ॉल्ट नज़र आता है आपको, जो हम क्लियर भी कर देते हैं, ठीक है। फिर अगर उस पर बात करनी भी होती है तो फिर सिर्फ शॉर्टकट से किया करें। अगर सिंपल सा जवाब मिल जाए तो उस पर ना मुतमईन हो तो फिर हम मुतमईन तो खुदा करता है, तो सिंपल सा जवाब हम दे देते हैं जो हमें समझ आता है। जी जज़ाकल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। भाई अच्छा एक सेकंड, नहीं सॉरी, नहीं भाई लुकमान भाई ये ज्यादती है। लुकमान भाई देखे मैंने उनकी बात खामोशी सुनी है, आपने पहले मुझसे मौका चाहा था, ठीक है आप सुन ले, शायद कोई एक आधा कुछ जुमला हो उनका। हाँ नहीं अहमद भाई पहले बात इस तरह है कि मैंने हजरत उनको मौका दिया। मिर्ज़ा नहीं भाई साहब, लुकमान भाई मेरी बात हो रही है, प्लीज भाई बुरा ना माने, यार प्लीज इसमें वो हमारी कौन सी डिबेट चल रही है जब नहीं मुनाज़रा हो रहा डिबेट नहीं चल रही, मगर देखे मेरी बात सुने अहमद भाई, आपने बात की, मैंने उसका रिस्पांस नहीं देना, ये गलत बात है ना। दे मैंने पहले बिल्कुल उनको मौका, उनको हक है, थोड़ा सा नहीं जुमला उनको हक हासिल है, मेरी बात के बाद बात कर लेना, मुझे कोई इतराज नहीं दे दीजिएगा जवाब। देखें मेरी बात सुने, पहले भी लुकमान भाई को मैंने ये कहा था आप बात कर लें, आप देख लें वो बात कहाँ, वो मौजू से हट गई थी, इसलिए थैंक यू लुकमान भाई, थैंक यू फॉर योर पेशेंस भाई, थैंक यू। अच्छा अहमद भाई, जो आपने बात की है कि हनफियत को अपने साथ जम कर लिया, मिर्ज़ा साहब ने चारों मज़ाहब को इस्लाम के वास्ते 4 दीवार के तौर पर कहा है, तो फिर उनकी तरफ अपनी निस्बत करना बिदत कैसे हो गया, ये असल सवाल है। यानी ये ऐसे ही है कि एक आदमी कहे कि मैं खुद को मुसलमान कहता हूँ मगर अपने अंदर बिदआत सारी रखूंगा। यही तो गिला जमात अहमदिया सुबह शाम 24/7 हमसे करती है कि भाई तुम खुद को मुसलमान कहते हो और बिदआत सारी तुम्हारे अंदर है। आप जमात अहमदिया को ये तरीका सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि खुद को आपने सिर्फ जमात अहमदिया कहना है, यानी सोशल आइडेंटिफिकेशन के लिए एक नाम खास कर लो, खुद को हनफी मालकी शाफी नहीं कहना क्योंकि ये बिदत है, अहमदी कहना है, चाहे उनकी फिका फॉलो करना शुरू कर दो। ये क्या तरीका है? अब मिर्ज़ा साहब ने सिर्फ हनफियों को ये नहीं कहा कि वो जनाब बड़े अच्छे हैं उनके साथ जम हो जाओ। मिर्ज़ा साहब ने कहा मेरे ख्याल में ये चारों मज़हब अल्लाह रसूल और इस्लाम के वास्ते एक 4 दीवार के तौर पर है। वो कहते हैं कि आज लोग इसलिए बिगड़े हैं कि इमामों की मुताबत छोड़ दी हुई है। तो ये यानी मैं हैरान हूं कि आप एक जगह पर उन नामों को बिदत, इस्लाम से दूर
اور دوسری جگہ کے اوپر آپ خود کو احمدی انہی کی طرح کا ایک نام دے رہے ہیں اور انہی کے سسٹم کو فالو کرنے کی بات کر رہے ہیں. یہ ہے وہ مسئلہ. پوائنٹ نمبر 1 ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی آپ مرزا صاحب کو نہیں میں نے کہا بالکل کہ جی میں مرزا صاحب کو نہیں مانتا. تو اصولی طور پر آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ جماعت احمدیہ کا نام مرزا صاحب نے الہام پا کے رکھا. آپ نے جو آیت پڑھی ہے بہت طریقہ کار غلط ہے, بہت غلط طریقہ کار ہے افسوس کے ساتھ, کہ آپ قرآن کی کوئی ایسی آیت پڑھ دیں جس میں دور دور تک کوئی اشارہ تک نہ ہو اور آپ اس کو جو ہے نا وہ اپنی دلیل کے طور پر پیش کر دیں. جی وافا اولئک هم المفلحون میں یہ اشارہ ملتا ہے جی یہ جماعت احمدیہ. کیا کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں ایسا, یہ کیا تعلق ہے اس کا؟ ضنی چیز کو اپنی دلیل کے طور پر کیسے پیش کر سکتے ہیں آپ, جس کا مطلب کوئی بھی اور نکلتا ہے اس اصول کے مطابق. بہت شکریہ جی. جی لقمان بھائی اب آپ بات کر لیں. ہاں جی, اچھا میں نے احمد بھائی سے بات کرنی تھی. احمد بھائی, جو بزرگان دین گزرے ہیں حضرت مرزا صاحب سے پہلے, کیا مرزا صاحب کا یہ عقیدہ کبھی رہا ہے کہ ان بزرگان دین کو باطل ثابت کریں؟ حضرت امام ابو حنیفہ کی جو خدمات ہیں, حضرت بالکل امام نہیں, شافعی. بالکل نہیں, بالکل نہیں. ہاں بالکل نہیں. جب مرزا صاحب کا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ میں امام ابو حنیفہ کو باطل نعوذ باللہ کرنے کے لیے آیا ہوں, یا امام شافعی کو, یا حضرت داتا گنج بخش کو, یا جو بزرگان دین جو مرزا صاحب سے پہلے آئے ہیں ان عربی کی یا قدر, مہاجرین یا جتنے بھی تھے. ہاں جتنے بھی گزرے ہیں ان کی قدر و قیمت کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں, بلکہ وہ تو ان کی شان اور بھی بڑھانے کے لیے آئے ہیں. تو امام ابو حنیفہ نے جو دین کی خدمت کی ہے, کیا مرزا صاحب اس کو جھٹلا دیں, یا حضرت امام شافعی نے جو خدمت کی ہے یا اس کو جھٹلا دیں؟ آج کا جو حنفی ہے یہ کیا حضرت ابو حنیفہ کے مقام کے برابر ہے؟ آج کل جو دیوبندی ہے یا حنفی فرقہ سے جو تعلق رکھتا ہے پاکستانی مسلمان جو ملاوٹ خور ہے, کیا حضرت امام حنیفہ کے جو روحانی گواہ ہیں ان کے برابر اس کے گواہ ہیں؟ آج کا جو مسلمان چور ہے, رشوت خور ہے, کیا وہ امام ابو حنیفہ کو ماننے کے باوجود ان کے معیار پر برا اترتا ہے؟ جب امام ابو حنیفہ کی بات آتی ہے مرزا صاحب ان کو سلام کرتے ہیں, جب ایک حنفی کی بات آتی ہے آج کے ایک مسلمان کی تو اس کو ناراض ہوتے ہیں اور اس کو بدعت کہتے ہیں. سو مرزا صاحب نے کا یہ مسئلہ نہیں تھا کہ وہ اس لیے آئے ہیں کہ وہ ان بزرگان دین پر کوئی ان کو جھوٹا ثابت کریں. ایسا بات نہیں ہے. جو چیز اچھی تھی وہ مرزا صاحب نے اچھائی کے طور پہ بیان کی ہے, جو بری ہے اس کی اصلاح کی ہے. ٹھیک ہے, مرزا صاحب نے امام ابو حنیفہ سے بھی بات لی ہے, ابو ہریرہ سے بھی بات لی ہے, اور بھی جتنی حدیث ہیں ان سے بھی بات لی ہے. کسی کو جھٹلایا نہیں ہے. جو بات درست ہے وہ درست ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو. آپ آج بھی ایسی کر رہے ہیں تو وہ ہمارے پاس. بات پھر ٹھیک ہے, مجھے دیکھیں احمد بھائی اس طرح نہیں ہوگا, احمد بھائی اس طرح نہیں ہوگا, یہ بہت زیادتی ہے, یہ بہت غلط ہے. انہوں نے بات کی ہے تو مجھے کرنے دیں. ان کو ایک بات کر لینے دیں, آپ اس کے بعد جواب دے دیجئے گا نا. آپ ان کو بات کر لیں. جی احمد بھائی کر لیں آپ. جی میں نے کہا چلیں میں رسپانس کر دیتا ہوں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں اس پیچ میں کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر ایسی ہیلدی گفتگو کرنا کوئی بھی دوست کرنا چاہے تو ہم تو سب ہمیشہ سارے پھاٹک کھلے ہیں, ہر براڈ پہ کھلے. ٹھیک ہے, تھینک یو جی, بہت شکریہ جی. جی بہت شکریہ جی. مائک میوٹ کر لیں احمد بھائی, خود ہی کر لیں میوٹ, آپ کی مہربانی. تھینک یو جی, بہت شکریہ جی. آپ دیکھیں آج کل جو لوگ خود کو احمدی کہہ رہے ہیں اور مرزا صاحب کی طرف خود کو منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں الہی جماعت ہے, تو اس نام کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ آج ہم فرقہ ناجیہ کے اندر ہیں. مگر دیکھ لیں آپ, اگر اسی بنیاد پر ان کا نام رکھا تھا تو مرزا صاحب کی اگر جماعت احمدیہ کے بقول بہت بڑی خدمات ہیں, تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ احمدی جو ہے وہ اپنی بچیوں کے ساتھ زنا کر دیتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک احمدی جو ہے وہ شرابیں پیتا ہے, شرابیں بیچتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں یہ احمد بھائی نہیں, لقمان بھائی نے بات کی ہے. احمد بھائی ایسے نہیں ہوگا. لقمان نے بولا کہ نہیں بولا؟ مائک میوٹ کریں, مائک میوٹ کریں, مائک میوٹ کریں. لقمان نے بولا, میں بولا ہوں, میں نے نہیں بولا. میوٹ کریں. اوپن آئز بھائی, اوپن آئز بھائی یہ زیادتی ہے. انہوں نے بولا میں بولا ہوں. بند کریں, بند کریں, مائک میوٹ کریں. بڑی 2% کی غیرت سامنے آ گئی ہوں, میوٹ کرو. اچھا ایک سیکنڈ, ابھی جو وہ بات کر رہے ہیں وہ لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. لقمان بھائی نے کہا تھا مسلمان جھوٹ بولتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. اب عامر حق صاحب آپ بھی ذرا پلیز ذرا لفظوں کو اور نرم کر لیں تھوڑا سا, اور کنٹینیو کریں. میں نرمی کروں گا. مائک میوٹ کریں, مائک میوٹ کریں, مائک میوٹ کریں. یہ طریقہ نہیں ہے, یہ طریقہ نہیں ہے. مائک میوٹ کریں, مائک میوٹ کریں, یہ طریقہ نہیں ہے. اپنی باری میں احمد بھائی, اپنی باری میں احمد بھائی میں میوٹ کریں تھوڑا سا نا, وہی جو میں چاہ رہا ہوں. میوٹ کریں, میوٹ تھوڑا سا میں کروں گا, میوٹ تھوڑا سا کروں گا, وہ ہوسٹ فیصلہ کرے گا, ہوسٹ فیصلہ کرے گا. انہوں نے کہہ دیا, ہاں جی انہوں نے کہا ہے تو وہ اسی طرح ہی ہوگا. آپ میوٹ کریں, آپ چھوڑ دیں. انہوں نے کہہ دیا, میں نے سن لیا. ہاں میوٹ کریں, آپ میوٹ کریں. لقمان صاحب نے اپنی باری کے اندر مسلمان نام بول کر سب کے اوپر کیٹیگرائز کر رہے ہیں. ان کو نام لے کے کہا کہ بھئی فلاں مسلمان یہ کر رہا ہے یا فلاں مسلمان آج کل کے جو یہ کر رہے ہیں, تو ٹھیک ہے مجھے حق حاصل ہے,
मुझे हक हासिल है। तो आजकल के जो अहमदी अपनी बेटी के साथ जना करते हैं, आजकल के जो अहमदी देखिए, शराब गलत बात पीते ना हैं, करें। मुंह बंद करें ना, बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा? बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा आप मैंने लोगों से? ऐसी बात की नहीं। आमिर हक साहब, बर्दाश्त जो भी क्यों नहीं आप हो रहा? हमने ऐसी बात बात की नहीं। करेंगे बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा? उसके बारे में ओपनाइज भाई से। डेफिनेटली पूछा भी जाएगा कि आपने कहाँ से ये बात ली है या रेफरेंस लिया, तो नहीं नहीं, अगर कैसी खुदा नहीं पूछा जाएगा, पूछे मुझसे, मगर ये म्यूट करें ना अपनी बारी में। मुझे कह रहे मैंने थे बात मेरी की बात है, में बदगुमानी ना रखें। मैंने बारी की है अहमद भाई प्लीज अपनी बारी में। जिसका दो पाकिस्तान का दिल आता है वो पाकिस्तान के तमाम मुसलमानों, गंद दुनिया नहीं के कर तमाम सकते, मुसलमानों हम पर आप कैटेगराइज लोगों की तरह नहीं करके बात हुक्म लगाते हैं। मेरी बारी आई है तो माइक म्यूट करके दोनों बोलना शुरू हो गए हैं। ये कोई हम तरीका है? आपकी तरह बात नहीं कर सकते। तो आप चुप करें ना। आप नहीं कर सकते तो फिर चुप कर जाए, आप निकल जाए यहाँ से। आप चले, चले ओके, जाए, नहीं कर फिर सकते मेरी तो तरफ से फिर उसको कालू बोलने। सलाम है, आप आपने अकेले कहा बैठ था के करते रहे। अहमद साहब, आपने कहा था लुकमान साहब ने मौका दो और दो मौका, तो उनमें गल करन दो, नहीं मुझे आप बात करने दे। ओपनाइज भाई, ये कोई तरीका नहीं है कि ये अपनी बारी में बात करें और जैसे मैं बोले भाई अहमद भाई 2 साबित कर दिया है अहमद भाई अपनी बारी उनकी में। बात खत्म होने वाली है, अब थोड़ी मेरी सी बात खत्म होने वाली थी। इस ये लोग जनाब जान से जान के दोबारा निकालते हैं, रिपीट ये कराता है। मैं बेटी वहीं से से शुरू करूंगा, मेरा टाइम शुरू नॉर्मल होगा। बात करें। कुरान मेरा टाइम हदीस शुरू होगा। खत्म। कुरान हदीस गई। मेरा टाइम शुरू होगा। कुरान हदीस से ही करता हूँ, जो कुरान हदीस आपने पेश किया ना वही करूंगा। नऊज़ बिल्लाह, बेटी से जना कुरान हदीस मिले। हाँ जी, चलें जी, कुरान हदीस ही पेश करूंगा मैं। हाँ बिल्कुल, माइक म्यूट कर लें, माइक म्यूट करें जल्दी, माइक म्यूट करें। हाँ बहुत शुक्रिया। दोबारा मेरा टाइम शुरू करें और दोबारा वहीं से शुरू करें जी। नहीं, वहां से नहीं, ये गलत नहीं, बात वहीं से शुरू होगा, वहीं से शुरू होगा जब तक आप मुझे टोकना नहीं बंद करेंगे। उसूल होता है, जब तक आप लोग टोकना बंद नहीं करेंगे। कंटिन्यू करें, आप कोई ना बोले प्लीज, जल्दी से अपना पॉइंट दे दें जो देना है। Thank you. जरा जी थैंक यू। मैं जब खामोशी से सुन सकता हूं कि ये मुस्लिम बरादरी के ऊपर कैटेगोरिकली हुक्म लगा रहे हैं कि मुसलमान जनाब आज का शराब पीता है, मुसलमान आज का जना करता है, हम उसको ठीक कहते हैं? नहीं। तो फिर सुनो ना, आज का अहमदी जो अपनी बेटी के साथ जना कर रहा है, आज का अहमदी जो खुलेआम शराब पीता है, आज का अहमदी जो क्लबों के अंदर, स्ट्रिप क्लबों में, नंगे क्लबों के अंदर जाता है, आज का अहमदी जो मेमों फंसाता है, उनके साथ जना करता है, आज का अहमदी जो शिरक के अंदर पड़ा हुआ है, आज का अहमदी जो दुनियादारी के अंदर पड़ा हुआ है, क्या इसको जमात अहमदिया की उस हलके से निस्बत है जिसको कहा जा सके ये फिरका नाजी है? नंगी मां बहन की गालियां हमने अहमदियों को देते सुनी हैं। आज आप कह सकते हैं कि ये भी वो अहमदी है जो जमात अहमदिया फिरका नाजिया उसके अंदर शामिल है? कह सकते हैं? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां करने वाला अहमदी जमात अहमदिया का हिस्सा है? क्या ज़नाकारियां करने वाला अहमदी फिरका नाजिया का हिस्सा है? क्या सूद खाने वाला, रिश्वतें खाने वाला, हराम खाने वाला, खिंजीर और शराब खाने वाला वो अहमदी जमात अहमदिया का उसका हिस्सा है जिसको फिरका नाजिया कहा गया है? यकीनन सब कहेंगे नहीं। तो फिर आज हमारे सामने ये बात करना कि जमात अहमदिया ही वाहिद वो है जनाब जो फिरका नाजिया है, और आपके अंदर तो गलीज किस्म के लोग फंसे हुए हैं जो जनाकार हैं, शराबी हैं, ठीक है ना, और हराम कर रहे हैं, वो भी तो हैं। इसका मतलब ये है कि बंदे को उसके अमल, उसके अकायद और उसके एक्ट और उसके बिहेवियर के ऊपर परखा जाएगा, ना कि ये कि वो जनाब फलां जमात का है तो लिहाजा फिरका नाजिया बन चुका हुआ है। अब आ जाते हैं असल मौजू की तरफ जिसको डिस्कस होना चाहिए था। लुकमान साहब जब बात करते हैं हमें इधर उधर मुख्तलिफ यात्राओं पर ले जाते हैं, मगर असल मुद्दे की तरफ नहीं आते। असल मुद्दा ये था कि अगर जमात अहमदिया फिरका खुद को कहती है तो क्या ये कुरान के मुताबिक है? क्या जमात अहमदिया खुद का नाम अहमदिया अगर रखती है तो क्या ये बिदत नहीं है? जबकि मिर्जा साहब ने मलफूजात 2 के सफ़ा 208 के ऊपर हनफी शाफी नाम को बिदत कहा हुआ है। इन्होंने एक जुमला बोला, कहते हैं जी, और अपनी तरफ से दलील दी। वो दलील ये दी कि जनाब देखें, क्या मिर्जा साहब ने इमाम अबू हनीफा के ऊपर कोई तनकीद की? क्या उन्होंने इमाम इब्ने अरबी पे कोई तनकीद की? नहीं, वो तो उनकी शान बढ़ाने आए थे। कहाँ लिखा है मिर्जा साहब ने मलफूजात 2 सफ़ा 208 के ऊपर कि जो खुद को हनफी और शाफी कहता है, ये मैं उनको कह रहा हूं कि जो कि असल तरीके से हटे हुए हैं। उन्होंने कहा लोगों ने जो अपने नाम हनफी शाफी वगैरह रखे हैं, इमाम शाफी भी शाफी थे, इमाम हनफी जो इमाम अबू हनीफा थे वो भी हनफी थे, उनके शागिर्द अबू यूसुफ भी हनफी थे। तो ये जो खुद के नामों के साथ बाकायदा तबकात लिखे हुए हैं, तबकातुल मालिकीयीन, तबकातुल हनाबिला, तो क्या वो सारे के सारे आज के नहीं, आजकल के, आज से 800-900 साल पहले के जो लोग हैं वो सारे बिदत लेकर फिर रहे थे? ये इमामों की गुस्ताखियां नहीं है तो और क्या है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, अब मुझे क्या, अब सुनने वालों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मुझे एक सही मुसलमान या एक अहमदी होने के नाते मुझे इन बातों का रिस्पांस करना भी चाहिए कि नहीं? क्योंकि मैंने जब तक टिकटॉक, जब से मैं कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इस तरह की गुफ्तगू करता हूँ। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मुझे- कुरान मुझे में इसमें- आया है कि अल्लाह ताला फहशात फैलाने वालों के लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है। हमने इतनी साफ सुथरी गुफ्तगू की, कोई जना का इल्जाम नहीं लगाया। ये जो रोजमर्रा की बातें हैं, रिश्वत खोरी, ओपनाइज भाई टाइम लगा दें, ओपनाइज भाई एक का टाइम लगा देंगे।
हाँ, और अब ये जो है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि लोग इस तरह की काम करते हैं। अब जना, बेटी से जना, फलां, अब यहाँ पे औरतें और फैमिलीज भी सुन रही होंगी। अब बताएं, ये हया के खिलाफ नहीं है बात के, मसलन इस तरह की बकवास करनी और इस तरह की बातें करनी। मिर्ज़ा साहब ने जहाँ पे हनफी हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा की बात की है, रिस्पेक्ट किया कि हम उनकी जो दीन की खिदमत हैं उसको कबूल करते हैं, लेकिन जहाँ रद्द किया है तो वो उन बिदात को रद्द किया है जो आज का मुसलमान करता है, जो बुरा काम करता है, उसको उन्होंने रद्द किया है। जहाँ शिरक शुरू हो गया उसकी हद से आगे मिर्ज़ा साहब ने उसको रिजेक्ट किया है, और जहाँ तक शिरक नहीं था वहाँ तक उसको शाबाश दी है। ये इतनी सी बात थी जो समझाई है। तो अब इन्होंने जब देख लिया कि अब हर तरफ से इनको जवाब मिल रहे हैं और जवाब मिल दिए जा रहे हैं, ये कज बैसी पे उतर आए और ज़नाकारियों की तरफ बेटी के साथ ज़ना। हालांकि ये हाँ यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, कौन निकाल के देख लें कि जमात अहमदिया के कितने लोग ये काम करते हैं और 72 फ़िरक़ों के लोग क्या क्या करते हैं। कब्रों में से कब्र खोद के औरत के साथ किसी ने रेप किया, वो क्या अहमदी था? सो इस तरह की बातें हम भी कर सकते हैं। तो ये फ़ाहशात फैलाने वाली बात है। कुरान करीम ने फ़ाहशात फैलाने से मना फरमाया हुआ है। इनको कोई बात नहीं मिलती, ये अंबिया पर तोहमतें लगाना शुरू कर देते हैं, उनके अज़वाज पर, उनके मानने वालों पर इस तरह की हरकतें करते हैं। हज़रत आयशा पर भी तोहमत लगी थी। ये उसी तरह के काम ये करते हैं कि जब हारने लगते हैं तो गालीबाजी पे उतर आते हैं, ये तोहमत लगाने पर उतर आते हैं, और इनके पास कुछ नहीं। जो इन्होंने फ़िरक़ों की बात की है, ख़ुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 73 फ़िरक़े होंगे, उनमें से एक फ़िरका नाजी होगा। अब जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद 73 फ़िरके कहा है और एक फ़िरका नाजी होगा, तो फ़िरका तो उन्होंने खुद कह दिया कि वो फ़िरका होगा। तो जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़िरका कह दिया तो हम कौन होते हैं हम कहें कि नहीं है। अब मिर्ज़ा साहब ने भी कोई फ़िरका जो था उसका कोई ना कोई नाम तो रखना था ना, कि उसको किसी नाम से पुकारना तो था ही ना। तो फिर बुजुर्गान दीन ने अगर उसका नाम पहले से ही पेशन गोइयों में दिया हुआ था, अगर नहीं भी दिया हुआ था, आप उनको नहीं मानते, उसका फ़िरके का नाम एक अहमदिया रख दिया है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या उन्होंने उस फ़िरके का नाम कोई यहूदियों के फ़िरके पे या ईसाइयों के फ़िरके पे या हिंदुओं के किसी बुत के नाम पे रख दिया था, या कोई मतलब कोई ऐसा नाम रख दिया था जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत से बाहर था? सो वही नाम रखा ना जो अहमदिया फ़िरका था। कुरान करीम ने फ़िरक़ों के बारे में कहा है, तुम फ़िरक़ों को जब फ़िरके हो गए तो उनको इकट्ठा भी तो करना था ना, एक जगह पे इकट्ठा करना था। सो हम अहमदिया मुस्लिम जमात कहलाते हैं, साथ मुसलमान भी लगाते हैं कि हम अहमदिया मुस्लिम जमात हैं। सो हम खाली ये नहीं कहते कि हम अहमदी हैं लेकिन हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। जो बाकी फ़िरके हैं वो बिदात में पड़ चुके हुए हैं, उनकी मामलात ही कुछ और तरह के हैं। इसलिए मिर्ज़ा साहब ने उन फ़िरक़ों को कहा है कि तुम अल्लाह से दूर हट चुके हो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हट चुके हुए हो। ये बात है जो इनको बार बार समझाई जा रही है, लेकिन ये बात नहीं आ रही, कज बैसी करी जा रहे हैं। फिर इन्होंने यही काम करना है। जी अच्छा वो मुझे जानते जी, मैं इससे ज़्यादा मजीद मेरे फिर ऊपर जलते हैं, मैं इससे हाँ ज़्यादा ठीक है वो नहीं कर सकता। ओके जी ओपन अभी भाई टाइम लगा जज़ाकल्लाह ऊपर आने के लिए तो मेरा चैलेंज कबूल कर लें। पूरी उम्मत मुसलमान में या जमात अहमदिया के साथ अगर जी कोई हदीस मेरा टाइम कुरान शुरू की हो गया बात जी करना चाहता मेरा है टाइम शुरू हो गया जी म्यूट तो कर मैं लें जी हाजिर हूँ, जब बहुत मर्जी शुक्रिया बुला जी लें। बहुत शुक्रिया जी ठीक थैंक है, यू बहुत जज़ाकल्लाह ओपन शुक्रिया भाई, जी टाइम शुरू हो गया जी जज़ाकल्लाह जी जी। जी मैं जज़ाकल्लाह हाजिर जी हूँ, जब मर्जी बुला लें, हाँ ठीक ठीक है मैं जी इंशाल्लाह आ जाऊँगा। ओके, ठीक अल्लाह है, हाफिज़। जज़ाक जी मेरा अल्लाह। टाइम दोबारा शुरू कर वालेकुम दूँ सलाम। हाँ जी ठीक है, अपने टाइम लगा देते हैं दोबारा आपका। हाँ अस्सलाम वाला मन तबल खुदा जी ये टाइम दोबारा शुरू कर देनी मेरा ये टाइम खोटी कर गए मेरा जी बहुत शुक्रिया जी। अच्छा सबसे पहली बात तो ये है कि क्या इन्होंने मेरी बातों का जवाब दिया कि जमात अहमदिया के अंदर जो जानी और शराबी मौजूद हैं, हत्ता कि अपनी बेटी तक से जना करने के केसेस यहाँ पर मौजूद हैं, क्या इन्होंने उस बात का जवाब दिया कि क्या वो लोग भी फ़िरका नाजिया के अंदर शामिल है, जन्नत में जाएंगे? हाँ ना सके जे भाई इतनी सारी गल है, इतनी सी बात है, तो मैं अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूँ। अलबत्ता एक हवाला ज़रूर सुना देता हूँ। मियाँ महमूद साहब, टाइम मेरा चल रहा है तो गुफ्तगू तो करने का हक हासिल है। मियाँ महमूद साहब का खुतबा मौजूद है, मियाँ महमूद साहब का खुतबा जो फ्राइडे सरमन है, अल फजल अखबार के अंदर 11 मार्च 1939 देखो जी। हाँ जी ओपनाइज भाई, हाँ जी क्या कहते हैं? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है मंसूर भाई, ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं, ये तरीका नहीं है बात करने का, ऐसे नहीं। कंटिन्यू करें जी आप अमीर साहब जी ये देखिए मेरा टाइम खा गया ना, तो उसूली आप तौर पर एक्स्ट्रा 2 दे दें मिनट से थोड़ा सा, ऊपर मुझे आपने 30 सेकंड देने हैं जी। कोई नहीं, टाइम चलने दीजिए, 30 सेकंड मुझे ऊपर देने, ये चीज़ है। देखें ओपनाइज भाई, फ़र्क देखा आपने, इनकी बारी थी, एक बार भी माइक अनम्यूट किया मैंने, ये फ़र्क है। इन्होंने मुझे बदनाम किया अपनी तरफ से, पता है क्योंकि वो फेस नहीं कर सकते।
इनको पता है कि ये बंदा इनकी जुबान में जवाब देगा। हवाले तो रख देता हूँ साइड पे, पहले मैं इनकी साइकी आपको ओपन आइज भाई समझाऊं, ओपन क्योंकि आई ये भाई पब्लिक को ये मैंने देख भी लो, इसकी बात नहीं सुननी, ये ऐसे खपड़ा डालना रहता है, इसकी कोई इल्म ही ला। देखा जी, देख लियो ओपन आइज भाई। इनकी बारी थी, जो इनके दिल में आया इन्होंने बोला। मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर जो भी इल्तराज किए, मैंने माइक अनम्यूट किया। देखें ओपन आइज भाई, ये है फर्क। अब आप देख ले, पब्लिक देख सकते पहल कौन करता है, देखे, ये फर्क है इनमें और हम में। इन्होंने मुझे बदनाम और मेरे बारे में लोगों को बदगुमान, आम अहमदी बहनों को, भाइयों को, इन्हीं इसलिए के प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात कर रहा है तू, ऐसे ना। देख देख लें, मेरा टाइम मुझे पूरा मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं चुप हो गया हूँ, मुझे टाइम पूरा चाहिए। आमिर साहब आप प्लीज कंटिन्यू करें, मंसूर साहब प्लीज सुने प्लीज। हाँ, टाइम दोबारा मैं लगाएंगे। नहीं इसको सुनना चाहता, आपने सुनना तो सुना है, ये ऐसी गालीबाज बंदा है। हाँ ये देखे कोई भी बात किसी कोई जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सॉरी मुझे मंसूर भाई आपको उतारना पड़ा है, बट आप को जब कहा था कि अपने बारे में बोल लें और इस तरह अगले बंदे का गुस्सा दिलाते हैं, फिर बातें सुननी पड़ती हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टाइम आएँ तो प्लीज़ आराम से बैठें और अपनी टाइम पे बोलें। शुक्रिया जी। बात करेंगे। अहमद उप्पल साहब से बात हुई है, लुकमान साहब से बात हुई है, कोई एक गाली, कोई एक बदकलामी हुई है? जब तक वो रूल को फॉलो करते रहे, मैं कुछ सख्त, मेरी टोन भी चेंज हुई है नहीं? ये फर्क है, ये फर्क है एक अहमदी में और एक आम गैर अहमदी में, इनके बकौल ये फर्क है। मैंने कोई पहल नहीं की, दोनों बैठे रहे हैं, कितनी देर बात हुई है, दोनों हालांकि मौका देते रहे, भाई मुझे भी बोलने दे, मुझे भी, दोनों ने कोशिश की है। जब तक, अच्छा चलें, कहते हैं जी मैंने नहीं इसको सुनना, मैंने, वो दोनों जो बैठे हुए थे वो बेगैरत थे, यानी इनके बकौल, इनके बकौल, मैं नहीं कह रहा, यानी उनको गैरत नहीं थी कि वो बैठ के मुझसे बात कर रहे हैं। दोनों बैठे, ये नया आ गया चैंपियन कि जी मैंने इससे बात नहीं करनी है, गालीबाज है। तो तुम्हारे दो भाई बैठ के इधर 1.5 घंटा मेरे साथ सरकपाई करके गए हैं, वो क्यों करके गए हैं? पता है क्यों? जब तक आप लोगों की दाल गल रही होती है, जब तक आप लोगों की मर्जी का माहौल बन रहा होता है, आप बात करना चाहते हो। जब आपको लगता है गेम हमारे हाथ से निकल गई है, अब इन सवालों के जवाब नहीं है, तो आप एक बंदे को कहते हो गाली गलोच, या उसको प्रवोक करोगे, उसको ट्रिगर करोगे, उसके बाद आप चलते बनोगे। ये तरीकाकार है। बहरहाल मैं ओपन आइज भाई का शुक्रिया अदा करता हूं कि एटलीस्ट उन्होंने डेकोरम को मेंटेन रखा है, इसीलिए आप देखेंगे कि मैं प्रवोक नहीं हुआ। जब तक और जस्टिस कायम रहेगा, हमें पता होगा कि एक आदमी चीज़ को मैनेज कर रहा है, वो उसूल को कायम रखे हुआ है, हमें किसी किस्म का प्रवोक होने की, किसी किस्म के इश्तियाल में आने की जरूरत नहीं है। मेरी बारी, इनकी बारी थी, आपने देखा मैंने माइक म्यूट रखा, मैं एक बार भी अनम्यूट नहीं किया, एक बार भी इनके बात में नहीं बोला, जो इनके दिल में था इन्होंने बोला, मगर उनकी भड़ास निकल नहीं पा रही थी। इतना कुछ बोलने के बाद भी उनकी भड़ास नहीं निकल रही थी। जैसे मैं बोलता था उनसे बर्दाश्त नहीं होता था कि यार 2 मिनट साढ़े मुक गए ने, असी रज के जो गल करनी सी कर ली, होने दी वारी है, बर्दाश्त कर ली, नहीं बर्दाश्त होता। इसके लिए दिल चाहिए, जिगरा चाहिए, 4 बंदों के अंदर बैठकर बात करने के लिए ना, तनकीद सुनने और सुनाने के लिए जिगरा चाहिए, पिद्दी वाले दिल के और पिद्दी शोरबा के लोग। जी भाई आप भी भाई म्यूट करें भाई, क्या बात कर रहे हैं, मेरा टाइम चल रहा है। पॉइंट पे आ जाएं प्लीज, पॉइंट भाई म्यूट करना भाई, पॉइंट पे आ जाए। नया चौधरी आ गया, मेरा टाइम चल रहा है, पॉइंट पे आ जाए, पॉइंट की बात ही कर रहा हूं जो चल रहा है। और इतने मैं दाल नू तड़का किवें लवाना वो दस रहे हैं, पॉइंट ही चल रहा है, एक्सपोज ना करूं अखलाकियात। आप खामोश होकर मेरा भाई अपने टाइम का इंतजार करें। अगर आपके पास जवाब हुआ हमारे सवाल का तो दे दीजिएगा प्यारे भाई। आप भाई आपका अखलाक भी नजर आ रहा है। भाई चुप कर जाना, अखलाक, मुझे दोबारा टाइम दे जी, म्यूट ना करें इनको। हाँ दोबारा टाइम चलेगा मेरा। यार दिमाग ठीक, हाँ बस तो चुप कर जाना, दिमाग आपका ठीक नहीं है, इसका मतलब है आपसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये 440 वोल्ट का झटका है, इसके लिए हिम्मत चाहिए। जो दम हुआ मुझे बोल लेना, ये हमारा ही हौसला है कि हम आपकी बात बर्दाश्त करते हैं, आपकी माँ बहन की गालियां भी बर्दाश्त करते हैं, आप हमारी सादी उर्दू भी नहीं बर्दाश्त कर पाते। हाँ बार बार टोक रहे हैं, ये ओपन है भाई, ये हो रहा है, इनको उतार दें, सारा टाइम रखा गया है। मैं जा रहा हूँ खुद ही जा रहा हूँ भाई, यही है आपका, जा रहा हूँ, दाल नहीं गली। अच्छा चैंपियन उत्ते इंज आया जिमें मसला कश्मीर ने हल करना है, उत्ते इंज आया जिमें रशिया तो यूक्रेन की वार इन्हें खत्म करवानी है, तो काम वही शुरू कर दिया। आमिर भाई आप बोले, मंसूर साहब आप चुप कर जाए, आमिर भाई आप बोलें तो विच आप खुद पे आई, आप भी शुरू हो गया वही काम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्या बात की जाए। खैर बहरहाल मुद्दे की तरफ वापस आता हूं। 1 मिनट, हाँ थैंक यू, 2 मिनट आपने दे दिए, थैंक यू ओपन भाई। इन्होंने मुसलमानों को कैटेगोरिकली जो कहा, मैंने खामोशी से उस चीज को सुना। अब मेरी बारी थी, मुझे भी हक पहुंचता था कि मैं फिर कैटेगोरिकली रखकर बात करूं। आप देख लो नतीजा क्या निकला। असल मौजू की तरफ वापस आते हैं। असल मौजू जो था वो सिर्फ और सिर्फ सादा अल्फाज के अंदर ये था
کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے، یہ کہہ رہے ہیں جی جواب دے دیا، کدھر جواب دیا؟ جواب سوال سنا ہی نہیں آپ نے، سوال کو ٹچ ہی نہیں کر پائے. جواب سنے ذرا. سوال تھا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا ملفوظات 2 کے صفحہ 208 پہ حنفی، شافعی، مالکی وغیرہ ناموں کو بدعت کہنا، اور پھر تفسیر مسیح موعود کے والیوم 5 میں سورہ حج کی آخری آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ کہنا کہ ہم بھی احمدی ایسے ہی ہیں جیسے لوگوں نے خود کو حنفی، شافعی، مالکی کہا ہوا ہے. یہ بدعت نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب آیا؟ نہیں آیا. کہاں ہے سوال کا جواب؟ کہتے ہیں جی اماموں کی بڑی عزت کی، اماموں کی بڑی عزت کی. اماموں کی عزت تو تب ہوتی کہ جب مرزا صاحب کہتے، اچھا چلیں، ایک طرف کہتے ہیں جی لوگ جو ہیں وہ یہودی نام رکھ لیں، عیسائی نام رکھ لیں، تو جناب اپنی مرضی سے وہ غلط نام رکھ رہے ہیں، تو مرزا صاحب نے ان کو بدعت کہا ہے. حنفی نام یہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کسی کافر کا نام تھا. شافعی نام رکھنا یہ کسی کافر کا نام ہے. حنبلی نام رکھنا یہ کسی کافر کا نام ہے. تو بدعت کیسے ہو گیا؟ حنفی، شافعی، مالکی جو کہ مسلمانوں کے قبائل اور مسلمانوں کی نسبتیں ہیں، اگر ان کو آپ نے بدعت اور جو ہے وہ غیر اسلامی کہنا ہے تو مرزا صاحب بھی اسی چیز پر ہیں، کیونکہ خود کہہ چکے ہوں اس کیٹیگری میں. یہ وہ سوال تھا جس سوال کو ٹچ تک نہیں کر پائے. مرزا میاں محمود احمد صاحب نے جو خطبہ دیا 1939 11 مارچ کو، اس میں صاف طور پر لکھا کہ 90 سے 95% احمدیوں کے بچے ماں بہن کی ننگی گالیاں دیتے ہیں میرے سامنے. یہ میاں محمود صاحب نے لکھا ہوا ہے. بہت شکریہ. اچھا جی، بٹ صاحب بھی آئے ہیں، منصور صاحب بھی ہیں. منصور صاحب آپ نے بات کرنی ہے یا کائنڈ ہارٹڈ بھائی بھی ریکویسٹ کر رہے تھے بات کرنے کی، یا انہوں نے کرنی ہے؟ میں نے سر یہ کہا تھا ایک بس کائنڈ ہارٹڈ بھائی کو دے دیں، پھر بٹ صاحب اور منصور صاحب بات کر لیں. کائنڈ ہارٹڈ بھائی 1 منٹ لے لیں پلیز. چلیں ٹھیک ہے. میں نے صرف اتنا کہنا تھا کہ ابھی سیناریو جو گزرا ہے نا، اس میں میں نے یہ کہنا تھا کہ یہی میں کہتا ہوں کہ جب آپ اپنے دماغ میں رکھیں گے نا کوئی الہی مذہب یا الہی فرقہ یا الہی کچھ، اور اس میں تمام لوگ جو ہیں وہ سب جو ہیں وہ نیک فرشتہ پارسی ہیں، یہ کانسیپٹ بنیادی طور پہ مال فنکشن جیسے کہتے ہیں نا، فلاڈ کانسیپٹ ہے یہ. تو چاہے وہ کسی مذہب سے آپ ایسوسیٹ کریں، چاہے کسی فقہ سے ایسوسیٹ کریں، تو اس لیے بولنے سے پہلے آپ سوچ لیا کریں. آپ ریالٹی پہ بات کر لیں، ٹھیک ہے، عقائد پہ بات کر لیں یا اپنے جو نارمل پریکٹس سے بات کر لیں، لیکن یہ کہنا ہے کہ وہاں پہ سارے فرشتے تھے ہماری طرف، پھر آپ کو سننے کو مل گیا جو انہوں نے کہا، آگے سے آپ کو سننے کو مل گیا. تو دیکھیں آپ طریقہ کار بات کو نا، میں تبھی بھی کہتا ہوں اپنے احمدیوں کو کہ اپنے نا اپنے جو آرگیومنٹ آپ آرٹیکولیٹ کر رہے ہیں نا، یا آپ بات کر رہے ہیں، اس کے جتنا آپ کی آبزرویشن ہے، جو ریالٹی پہ بیسڈ جتنی بھی آپ کو لگتی ہے آپ کی آبزرویشن ہے، اس پہ بھی بڑھ چڑھ کے نا چیزوں کو کہ ہم بہت ہی زیادہ پارسا ہیں یا کچھ ہے، اس کو آپ ان چیزوں سے باہر نکلیں پلیز. جی کائنڈ بھائی آپ کی آ گیا پوائنٹ، اگر اور کچھ کہنا ہے، نہیں تو آپ کا ٹائم چل رہا ہے، اگر نہیں تو پھر ہم چانس دیتے ہیں. منصور بھائی پہلے آئے تھے یا ختم نبوت بھائی آئے تھے؟ کون پہلے آیا تھا؟ منصور دیکھ لیں. دیکھ لیں، میں پتہ نہیں بھیا، مجھے اب یاد نہیں ہے. چلیں پھر دیکھ لیں، اگر آپ نے جو کہنا تھا بٹ صاحب نے کہنا تھا، چلیں بٹ واٹس ایپ کر لیں جی. جی اچھا، ملفوظات کی بات ہو رہی تھی اور بات ہو رہی تھی جو